Hello, my dear class 9 students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So, आज जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर आवर टर्म 1 एग्जामिनेशन उसका सेकेंड सेशन है और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू बी studying a poem from our main reader. And what is the name of the poem? The Road Not Taken, and it is written by Robert Frost. Okay, so I'll quickly read the poem and explain it to you line by line. It says, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to way. I doubt it if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the less one traveled by. And that has made all the difference. So ये जो poem है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन टॉक्स अबाउट choices in life. तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है जहां पर जो पोएम है वो स्टार्ट हो रही है कहां से पोएट डिस्क्राइब कर रहा है दैट ही इज स्टैंडिंग एट crossroads. So the poet is standing here. Please don't mind my drawing. Okay. So this is our poet and he is standing here and he has two roads in front of him. Alright. Now he is unable to decide which road he should take, whether he should take road A or he should take road B. Alright. So he says two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood is referring to forest here. And he says, I'm sorry I could not travel both. सो ऑब्वियसली जब आपके पास लाइफ में चॉइस होती है ए या बी तो आप एक ही चॉइस पिक कर सकते हो यू कैन नॉट पिक अप बोथ द चॉइसेस इन वन गो ऑलराइट सो यही सिचुएशन पोएट की थी वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा था वेयर ही हैड टू डिसाइड वेदर ही शुड टेक द फर्स्ट रोड और ही शुड टेक द सेकंड रोड. And he says, be one traveler long I stood. So he said, I was standing all alone there. I had no one to guide me as to what road should I take. And he says, I looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. So here the poet is saying कि जहां तक मैं देख सकता था कि ये दोनों रोड्स कहां कहां जा रही हैं I looked as far as I could so that शायद मुझे देखने से आइडिया हो जाए कि अगर मैं ये वाली रोड लेता हूँ रोड ए लेता हूँ तो मैं किस रास्ते पहुंचूंगा अगर मैं रोड बी लेता हूँ तो मैं किस रास्ते पहुंचूंगा वेयर एग्जैक्टली विल आई लैंड अप वेयर एग्जैक्टली विल आई रीच ऑलराइट. Then he says, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had worn them really about the same. So the poet said that then I suddenly decided that let me take the second road. Why? He said that according to me the second road had a better claim. Better claim मतलब poet को ये लगा कि अगर मैं second road लेता हूँ तो शायद मैं एक बेटर जगह पहुंचूंगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं फर्स्ट रोड लेता हूँ. सो बेटर क्लेम लग रहा था उसको रोड फ्रॉम ऑफ द सेकंड रोड. And he said it was grassy and wanted wear. मतलब the poet thought कि ये जो second road है ये बहुत grassy है मतलब यहाँ पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है. wanted wear मतलब ये जो रोड थी ये थोड़ी सी डिफरेंट थी प्रॉब्ली थोड़ा सा रिस्की थी ये रोड पे चलना but still I took that road.
Though as for that the passing there had warned them really about the same, but पोएट कहता है कि जब मैं सेकंड उस पे चलना शुरू हुआ आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये भी फर्स्ट रोड जितनी ही वॉन ऑफ है, ये भी फर्स्ट रोड जितनी ही इसमें लोग प्रोबेबली चल के गए हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। सो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि दोनों रोड्स जो है, अब लग रहा था कि दोनों जो रोड्स हैं वो सेम है। In leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first one for another day. So poet कहता है कि जो मैंने पहली रोड थी वो छोड़ दी और मैं दूसरी रोड पे चल पड़ा। Knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. So poet कह रहा है कि जब मैं ये सेकंड रोड पे चल पड़ा, so I realized कि मेरा ये जो एक डिसीजन है, जो मेरा प्रेजेंट डे का डिसीजन है, उससे मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ जो है वो डिसाइड होगा। एग्जाम्पल, अभी आप 9th क्लास में हो, राइट? So maybe you've opted for a language. Let's say you've opted for Sanskrit, you've opted for French, or maybe you've opted for Punjabi, or maybe you've opted for German. अब आपने डिसीजन लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं लेनी, आई हैव टू ऑप्ट फॉर अनदर लैंग्वेज। अब ये जो आपने डिसीजन लिया है, isn't it going to impact your future? क्योंकि आप 10th क्लास में भी यही लैंग्वेज आपके पास होगी ऑप्शन में, राइट? इसी लैंग्वेज का आप बोर्ड एग्जाम दोगे एंड देन इसके मार्क्स जो है वो आपकी परसेंटेज रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम जो चूज करना चाहते हो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। फिर आप एक पर्टिकुलर करियर में जाते हो तो देखो कैसे आपको, हमें लगता है ना दैट ओ इट्स अ स्मॉल चॉइस, लेट मी जस्ट टेक इट, बट देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा जो एक डिसीजन होता है, द सिंगल डिसीजन दैट वी टेक, इट impacts our future course of life. Okay, so poet यहाँ पर यही कह रहा है कि मैंने second road ले तो ली, it was risky and I knew how way leads to way, मतलब कैसे एक decision जो है वो बाकी मेरे सारे decisions को भी impact करेगा। And then he says I doubted कि मैं कभी वापस आऊंगा। And he says I shall be telling this with a sigh. What is sigh? A long breath. थक जाते तो sigh, you take a sigh of relief, thank god मैम चली गई, है ना? करते हो ना ऐसे जब शैतानी कर रहे हो तो क्लास में। So he says somewhere ages and ages hence, so he says that after many years I'll be telling this with a sigh that there were two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the डिफरेंस। तो पोएट कहता है कि ये जो मैंने आज डिसीजन लिया है टू टेक द रोड व्हिच इज लेस ट्रैवल्ड, दैट इज a risky decision that I have taken, a cliche decision, I have not taken a cliche decision like other people. So मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चॉइस पुट की, ऑप्ट की है, या मैंने एक रिस्की डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। ये मेरी पूरी लाइफ जो है ये इस डिसीजन से डिसाइड होगी एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इनफैक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आप जो भी पोएम्स पढ़ोगे उसमें ही जस्ट टॉक्स अबाउट लाइफ, मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, हाउ आवर लाइफ is determined by various factors around us. Okay, so ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, टोटलिटी में ये बात करती है लाइफ के चॉइसेस के बारे में और कैसे ये चॉइसेस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। ओके, सो ये तो हो गई पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं राइम्स की। ओके, ऑलराइट, सो बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं, आप में से कुछ बच्चों को तो क्लास 6 से ही राइम स्कीम जो है वो पता होती है, बट बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये समझ लो पोएम का सुर। Okay, the musical notes of the poem also you can say it. Okay, but don't write this in the exam. Okay, ये मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए कह रही हूँ। Okay, so जब भी पोएम की राइम स्कीम आती है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट योर इंग्लिश वाली मैम, योर एजुकेटर प्रेरणा इज हियर। सो मैम आपको आज एक ट्रिक बताएंगी जिससे आप किसी भी पोएम की जो आपके सिलेबस में भी नहीं होगी ना पोएम,
उस पोयम की भी राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टैंजा पिक करते हैं और स्टैंजा के जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनको लिखेंगे हम यहाँ। तो पहली जो लाइन है, टू रोज डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, तो लास्ट वर्ड क्या है, वुड। ओके, यहाँ पर एक डैश लगा दिया मैंने। उसी के साथ जो नेक्स्ट लाइन है, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लास्ट वर्ड क्या है, बोथ, यहाँ पे लगा दिया डैश। थर्ड लाइन लास्ट वर्ड क्या है, स्टूड। राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए आपको हर एक लाइन का लास्ट वर्ड पिक करना है। ओके, उसके बाद फोर्थ लाइन क्या है, वर्ड कुड, एंड उसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो है अंडरग्रोथ। जिसमें हम ग्रोथ पे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। ओके, अब देखो राइम स्कीम कैसे फाइंड करते हैं। राइम स्कीम पोयम की फाइंड आउट करने के लिए आपको पोयम को लेबल करना पड़ता है। अब बोलूंगा पोयम को लेबल, पार्ट्स ऑफ अ पोयम, ये क्या बताती हूँ। वुड, जो भी पहला, जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, जो पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ओके, वो हमेशा क्या लेबल होगा, एज ए। जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम है उसका लास्ट वर्ड जब आप लिखोगे ऐसे, तो हमेशा उसको क्या लेबल करोगे, एज ए। ओके, वैसे इसको हम कैपिटल ए नहीं लिखते क्योंकि राइम स्कीम में वी जनरली प्रेफर राइटिंग स्मॉल लेटर। ओके, बोथ। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है, राइम। राइम स्कीम मतलब क्या वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं या नहीं। तो क्या ये जो वर्ड है वुड और बोथ, ये राइम कर रहे हैं आपस में, नहीं। तो ये जो वर्ड है बोथ, इसको हम एक नया लेबल देंगे, क्या लेबल देंगे, बी। ओके, अब ये जो वर्ड है स्टूड, क्या ये बोथ से राइम करता है, नहीं। क्या ये वुड से राइम करता है, यस, वुड, स्टूड, राइट। तो जो लेबल हमने वुड को दिया था स्मॉल ए, वही लेबल हम स्टूड वर्ड को भी देंगे, जो कि क्या है, ए। कुड, कुड किससे राइम कर रहा है, वुड से भी राइम कर रहा है, स्टूड से भी राइम कर रहा है, तो क्या लेबल आएगा इसके लिए, ए। ग्रोथ किससे राइम कर रहा है, कुड से राइम करता है, ग्रोथ, ग्रोथ कुड नो, ग्रोथ स्टूड नो, ग्रोथ बोथ करता है राइम, तो क्या लेबल आएगा, जो लेबल बोथ को दिया वही लेबल इसको भी आएगा। तो पोयम की कई बार क्या होता है बेटा, पोयम में हर एक स्टैंजा की अलग राइम स्कीम होती है, बट इस पोयम में आपको जो राइम स्कीम है वो सेम ही मिलेगी। ओके, सो आपको जो राइम स्कीम याद रखना, हमेशा आपको एग्जाम में राइम स्कीम का क्वेश्चन जो आएगा वो स्टैंजा के अकॉर्डिंग आंसर करना। अब आपको मान लो स्टैंजा 3 आ गया, उसकी अगर मान लो एज्यूमिंग कि उसकी अलग राइम स्कीम हुई, तो आप ये आंसर नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट लेबलिंग इट टू फाइंड द राइम स्कीम। और कैसे लेबल करेंगे, जो वर्ड्स सेम राइम करते हैं उनको सेम लेबल मिलेगा, जो अलग राइम होंगे उनको अलग लेबल मिलेगा। तो अगर मैं इस स्टैंजा की बात करूं, वैसे तो इस पोएम की भी राइम स्कीम है, तो क्या हुई राइम स्कीम हमारे पास, क्या निकल के आई, ए बी ए बी, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। डोंट वरी, हम आगे भी और जो पोएम्स करेंगे हम उसमें और लेबलिंग करेंगे so that you understand it better। वैसे ये बहुत सिंपल टेक्निक है, जब भी मैंने स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखाई है उन्होंने within a minute they have been able to find rhyme scheme of any poem। okay, so simple है, you start labeling the words and you are able to find the rhyme scheme। लास्ट है इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं बेटा कुछ ऐसी टेक्निक होती है,
कुछ ऐसे क्रिएशन की जाती है पोयम में, सो दैट द पोयम लीव्स अ डीपर इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। ओके, तो इसकी अगर मैं पोएटिक डिवाइसेस की बात करूं, तो आपके पास तो सबसे पहला आप लिख सकते हो साथ साथ पोएटिक डिवाइस आता है, वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म मतलब जो एक चीज को सिंबलाइज करता है। तो ये जो टू रोड्स हैं, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? ऑफ द डिफरेंट चॉइसेस दैट आर देयर इन आवर लाइफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं एक वर्ड, लेट्स से प्री प्रिपेयर फॉर एग्जाम्पल, ऐसी। अब अगर आप देखो तो ये एलिट्रेशन कैसे है, क्योंकि ये जो साउंड है प्र, ये सेम है ना। ऑलराइट, सो यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड। बहुत से बच्चे एलिट्रेशन में ये गलती करते हैं कि वो अल्फाबेट्स देखते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अब अगर यहां पर हमने लिखा द टैंक, अब बच्चे इसको भी एलिट्रेशन लिखते हैं। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर द का साउंड है द, और यहाँ पर ट का साउंड है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज ओनली अबाउट द साउंड। तो इस बुक में, इस पोएम में सॉरी, आपको दो तीन एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वांटेड वेयर। ऑलराइट, व का साउंड आ रहा है ना दोनों वर्ड्स में, और ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं। ऑलराइट, देन ऑफ कोर्स यू हैव एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस कंटिन्यूअसली, लाइन एक लाइन के बाद, मतलब लेट्स से टिपिकल वर्ड और फ्रेज जो है वो रिपीट किया गया है वन लाइन आफ्टर द अदर। तो अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखोगे पोयम का, उसमें जो एंड वर्ड है दैट हैज बीन रिपीटेड इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ line. So and is an example of anaphora in this poem. And the last poetic device is imagery. Imagery क्या होता है? When the poet uses certain words because of which the readers also start imagining what would the scene be like. अब जब हम ये पोएम पढ़ रहे थे तो आई एम श्योर आप सबके माइंड में यू वुड हैव थॉट ऑफ अ पर्सन who's standing on the crossroads, और उसके इधर भी बहुत सारी ट्रॉडन लीव्स हैं, इस साइड भी बहुत सारी लीव्स हैं, स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट। तो एक इमेजरी क्रिएट की गई। सो देयर आर फोर पोएटिक डिवाइसेस, सिंबोलिज्म, सेकंड is alliteration, third is anaphora, and fourth is imagery. Okay, so that's about this poem. क्रैश कोर्स है, but still मैम ने आपको जो पोएम है वो अच्छे से समझाई है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर प्रेरणा। थैंक यू।